नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत आप सभी का जीवन की पाठशाला में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो ठीक हो और खुश हो। Keeping this theme, let's start today's video. For starting today's video, I would like you to give a quick recap of previous video, whatever we have seen in the previous video. We are dealing with the fourth noble truth, that is the path itself, and that path is called the eightfold path. And in that we saw the path can be studied under three heads. First head is nothing but ethical conduct, which we have already dealt with. Second was mental discipline. We are also done with the mental discipline. And third is nothing but the wisdom, which today we will see that what this wisdom actually is. Now this wisdom can be divided into two things. First, इसमें दो चीजें आती हैं. First is right understanding and second is right thought. Now what does right understanding actually means? Buddha said there are two things, दो चीजें होती हैं when it comes to knowledge. Accumulation of information, जो चीजें हम इकट्ठा करते हैं, that is nothing but नॉलेज, जिसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन का इकट्ठा करना, एक चीज़ अलग होती है. और दूसरी चीज़ दैट इज़ नोइंग अकॉर्डिंगली बोला गया है. एंड दूसरी चीज़ होती है पेनिट्रेशन, डीप पेनिट्रेशन, दैट इज़ नथिंग बट एक्सपीरियंशियल अंडरस्टैंडिंग, आप जिसे बोल सकते हो या आप जिसे विजडम बोल सकते हो. बेसिकली इंफॉर्मेशन का होना एक अलग चीज़ होती है, नॉलेज होना एक अलग चीज़ होती है, और उस नॉलेज का एक्सपीरियंस होना अपने लाइफ में, इट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. इसे आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी बोल सकते हो एंड इसे आप एक्सपीरियंशियल अंडरस्टैंडिंग भी बोल सकते हो. कैन इजीली रीड ओवर हियर कि बुद्धा ने जो भी चीज़ें बताई थी, उसका बुद्धा के टीचिंग का नॉलेज होना एक अलग, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. एंड उन चीज़ों को मेडिटेशन के मदद से अपने खुद के लाइफ में एक्सपीरियंस करना एंड देन उसको एग्जीक्यूट करना, दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. So when Buddha is saying, when he is saying that right understanding को right view भी बोला जाता है. Now what he said that noble truth, impermanence, karma, fund, ये जो fundamental बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, इन कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. एंड इस कॉन्सेप्ट को देन प्रैक्टिस, मेडिटेशन के प्रैक्टिस थ्रू रियलाइज करना, दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. तो व्हेन ही सेइंग अंडरस्टैंडिंग, इन चीज़ों का अंडरस्टैंड में दो चीज़ें आएगी आपकी. एक तो होगा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड सेकंड होगा आपका एक्सपीरियंशियल अंडरस्टैंडिंग. तो ये चीज़ें अगर आपके पास है, then you have the right understanding. That's what Buddha actually meant when he said that one should have a right understanding. I hope you are understanding what I am trying to convey over here. Now second thing in right understanding में दूसरी चीज क्या आती है? Right thought. Now right understanding or right view leads to right thought. Right thoughts में हमें आता है, there is nothing called right intention. Right intention, uh, अच्छे views, if you have a right understanding you will get a right intention. Right intention is nothing but the intention of renunciation or intention of detachment. Now most of the time जब कभी बात आती है, whenever the Buddha's teaching की बात आती है, तो most of the time हमें लगता है कि if you want to follow the Buddhist teaching in our normal day to day life, then it's not possible. क्योंकि पहले तो चीज़ आती है कि जब कभी बुद्धा का नाम आता है तो हमें ऐसा लगता है कि मुझे मंक ही बनना पड़ेगा, then only I will able to follow the path which Buddha actually told, or which path is given by Buddha. So that's not the actual thing. That's what Buddha said, that detachment, when he never meant, he said that detachment का exactly meaning क्या होता है. एक होता है कि बुद्धा ने बोला है इसलिए चीजों को छोड़ देना, और दूसरी चीज होती है कि जो बुद्धा ने बोला है उसको एक्सपीरियंस करके रियलाइजेशन जब आपको आता है तो वो चीजें ऑटोमेटिकली आप छोड़ देते हो. दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. I hope you are understanding what I am trying to convey over here. So, if you are getting the detachment, for example, जैसे जैसे आपके नोबल ट्रूथ का नॉलेज, जैसे जैसे डेप्थ इन डेप्थ नॉलेज बढ़ते रहेगा,
आप उसको एग्जीक्यूट करोगे आपकी लाइफ में, एंड वो चीज़ें फिर धीरे धीरे आपका ऑटोमेटिक चीज़ों से मन उठ जाना, जैसे जैसे आपका रियलाइजेशन हो रहा है, दैट सेल्फ इंसाइट्स आपको आ रहे हैं, देन उन चीज़ों से आप ऑटोमेटिकली दूर चले जाते हो, एंड यू नेचुरली बिकम पाथ टुवर्ड्स मंक, या फिर नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी a person like you and me can also follow the path. जरूरी नहीं कि एक मंक बन के ही हमें फॉलो पाथ को फॉलो कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली दैट्स व्हाट बुद्धा एक्चुअली मेंट व्हेन ही सेड देयर आर ब्यूटीफुल लाइन्स व्हिच रीड बिलीव ऑन नथिंग डजंट मैटर वेयर यू हैव read it, doesn't matter where you have listened it, even if I am saying it, until and unless it appeals to your own reasoning। इसका मतलब ये होता है किसी भी चीज के ऊपर भरोसा मत करना, भले ही आपने उससे कहीं सुना हो, भले ही आपने उसे कहीं पढ़ा हो। मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज के ऊपर भी भरोसा मत करना जब तक वो चीज आपकी तर्क की शक्ति को सही नहीं लगे। इट्स हाईली लॉजिकल, कोई बुद्धा ने बोला है इसीलिए किसी चीज के ऊपर ब्लाइंड फेथ रखना, इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग, दैट्स व्हाट बुद्धा से। क्योंकि आंख मूंद के किसी चीज के ऊपर भरोसा करना, दैट इज मोस्ट डेंजरस इविल, दैट्स व्हाट बुद्धा सेड। सो इन दिस राइट इंटेंशन एंड राइट थॉट में क्या आता है, व्हेन यू आर राइट अंडरस्टैंडिंग विल हैव राइट थॉट, एंड राइट थॉट जैसे जैसे विल हेल्प यू टू डीपन द नॉलेज ऑफ द बुद्धास फंडामेंटल टीचिंग, एंड जैसे जैसे टीचिंग का नॉलेज इन डेप्थ में बढ़ता जाएगा, आपको रियलाइजेशन आते जाएगा, एंड दे दैट इज अ साइन, जैसे जैसे आपको रियलाइजेशन आता है, यू गो टूवर्ड्स डिटैचमेंट, ऑटोमेटिकली आप चीज़ों से डिटैच होने लगते हो, एंड दैट इज अ साइन दैट यू आर मूविंग अहेड, एंड दैट इज अ ट्रू साइन दैट यू आर फॉलोइंग द path, that is the eightfold path. Now I would like you to give a quick bird's eye view जो हमने ये पूरे पाथ में देखा था। We first we saw the ethical conduct, ethical conduct में हमने देखा था right speech, right action, right livelihood। Then we saw the second head, that is mental discipline, in that we saw right effort, right mindfulness, right concentration, and today we saw that wisdom, right understanding and right thought। So this is the eight noble fold path actually which is given by the Buddha। सो अगर आपने ये वीडियो, इफ यू हैवंट सीन द प्रीवियस वीडियो और द वन बिफोर द प्रीवियस वन, आई हाईली रिकमेंड यू टू गो थ्रू दैट वन, एंड ये सारे वीडियो से आपको पता चलेगा दिस पाथ इज नथिंग बट द वे ऑफ लाइफ। ये जिंदगी जी कैसे जाती है, जिंदगी जीना कैसे है, दैट इज नथिंग बट दिस पाथ इज ऑल अबाउट। अगर हमने इस पाथ को जरूरी नहीं है कि मंक बनना या कहीं हिमालय में जाके नो तपस्या करना, इट्स नॉट जरूरी नहीं है ये चीज़ें। अगर हमने ये पाथ को इफेक्टिवली हमारे लाइफ में एग्जीक्यूट किया, इट विल डेफिनेटली लीड टू सुप्रीम हैप्पीनेस। It will lead us towards the supreme happiness, it will help us to add color, richness and depth in our life। Okay, that's it today for guys। If you like this video, don't forget to share it, like the video and subscribe my YouTube channel। You can also connect with me through the Instagram Siddhant Life School, this is my Instagram channel। Thank you guys, thank you for watching this video, have a great evening ahead।